alaikum, students of class 4. I hope that you all are fine and doing well at home. Today we are going to start our new topic, and today we are going to learn about present continuous tenses. As you all know that we have done and we have learned about the simple present tenses, that which form of verbs do we have to use, how many kinds of sentences do we have in our tenses, and what are the form of verbs that we use. So let's revise the simple present tense first, and then we will move towards the main topic, present continuous tenses. Who will tell me what is the date today? 30th November 2020. And what is the day? Monday. And what is our topic? Topic for today. Before going towards present continuous tenses, first we will revise the simple present tenses. So what do we do in simple present tenses? Simple present tense. Simple present tense में हम क्या करते हैं? कौन मुझे बताएगा? Yes, Ahmed Kashif. Do you have any idea? What do we do in simple present tenses? Alright, I'll make it easy for you. You have to tell me that which form of verbs do we use in simple present tenses? What do we use? Yes, in present tenses we use past form of verbs. As we all know that there are three kinds of tenses: present tenses, past tenses and future tenses. In present tenses we always use first form of verb. In past tenses they mostly use second and third form of verb, and further it goes to the future tenses. So whenever we are talking about the present tenses, we will always use first form of verb. The simple present tense, we will use first form of verb, and we will use s, es or ies with the singular nouns. Okay? And what are the helping verbs that we use in simple present tenses? Yes, very good Fatma, you knew it. We use do and does in the simple present tenses. I will write it for you over here to make it easy. Because in simple present tense we simply use first form of verb. ठीक है? अब ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे पास वो सेंटेंस होते हैं जिसको हम नॉर्मली अपनी यूजुअल रूटीन में बोलते हैं, जैसे हाँ अली खाना खाता है, सारा स्कूल जाती है, हम सब इकट्ठे पढ़ते हैं. तो दीज आर द थिंग्स दैट एंड दे टेल अस अबाउट अ नॉर्मल रूटीन. ये वो काम हैं जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में डेली रूटीन में करते हैं. इनकी ज़्यादा अगर आप कहें कि आपने निशानी लगानी है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं. दे आर द सेंटेंसेस दैट एंड ऑन ता है, ती है एंड ते है. पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं. दीज आर द सेंटेंसेज. ये आपके पास ये वो जुमले हैं, वो सेंटेंसेज हैं जिस तरह हम उर्दू में बात करते हैं. तो इस तरह आपको याद रहेगा कि व्हेन एवर दीज आर द सेंटेंसेज दैट एंड ऑन दिस, तो आपको पता होगा कि इन सेंटेंसेज के लिए आपने कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने हैं, आपके पास कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी. ठीक है? तो आई विल ऑल्सो राइट इट इन उर्दू ताकि आप लोगों को जितनी भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए. तो हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी को हम लोग आगे फर्दर लेके जाएंगे.
बट बिफोर वी मूव टू दैट, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नो कि जब भी हम किसी सेंटेंस की या किसी भी टेंसेस की बात कर रहे होते हैं, वी हैव 3 काइंड ऑफ सेंटेंसेस: affirmative, negative and interrogative. Affirmative are the positive sentences में हम लोग सही बात करते हैं, जिस तरह अली स्कूल जाता है, ठीक है. Negative sentences are the ones में हम कोई नेगेटिव बात करते हैं. If I add not in it और नहीं उसमें जुमले में मैं लगा दूंगी. And interrogative जिसमें हम कोई सवाल करते हैं. Affirmative मेरा बेटा, जिस तरह मैं अभी कोई एग्जांपल दे रही थी कि अली स्कूल जाता है, ठीक है. अली गोज़ टू स्कूल, अली स्कूल नहीं जाता है. अब अली के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू आएगा या डज आएगा. फिर उसके बाद मैं इंटेरोगेटिव की बात करती हूँ कि क्या अली स्कूल जाता है. तो इंटेरोगेटिव में मेरा बेटा आप हमेशा सवाल पूछते हो, क्या, कब, कैसे, ठीक है. तो ये इस तरह के जो सवाल वाले जुमले होते हैं, इनको हम सवालिया जुमलों वगैरह को हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. So we have 3 kinds of sentences: affirmative sentence, which we can say it is a positive sentence, the negative sentence, and the interrogative sentence. Let's take an example. Of my affirmative sentence. My negative sentence: अली स्कूल नहीं जाता है. And the interrogative sentence. Interrogative sentence क्या होगा ओमर फैसल? क्या अली स्कूल जाता है? वेरी गुड. क्या और मैं इसके फुल स्टॉप लगाऊंगी, क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी. यस, आई विल राइट क्वेश्चन मार्क ओवर हियर. और क्वेश्चन मार्क ओवर हियर क्योंकि हमेशा सवाल के मतलब कि इंटररोगेटिव सेंटेंस के एंड पे हम क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं. सो दिस इज माय नेगेटिव सेंटेंस and this is my interrogative sentence. So now, अब जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है जो इसके साथ हम ऐड करेंगे, दैट इज़ कि जब हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम अपनी वर्ब्स के साथ क्या यूज़ करते हैं. रिसेंटली हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में वर्ब्स के बारे में पढ़ा. इन द लास्ट वीडियो, अगर आप लोगों में से किसी को कन्फ्यूजन हो तो यू कैन वॉच द लास्ट वीडियो एंड दैट इज़ रिलेटेड टू दिस वन. उसमें आपको क्लियर होगा वी हैव 3 kinds of form of verbs. And with the first form of verb, whenever we are talking about the simple present tenses, we always use s, es और ies. या तो हम s इस्तेमाल करते हैं या es लगाते हैं या फिर ies यूज़ करते हैं, ठीक है. लेकिन ये s, es और ies जो हम अपनी वर्ब के साथ लगाते हैं मेरा बेटा, ये हमेशा सिंगुलर सेंटेंसेस के साथ यूज़ होगी. हम लोग ये प्लूरल के साथ नहीं लगाएंगे. वी विल डू एन एग्जाम्पल, ठीक है. s, es or ies with singulars. Just like if I write over here, if I have a verb word, तो word क्या बन जाएगा? word के साथ हम क्या ऐड कर देंगे? verbs. If I have a cry or if I have watch, all of these are the verbs. So what will I add with them? If the by, the cry, it is ending on by, so by के वर्ड हमारे पास किस में चेंज होते हैं? ies में, ठीक है. तो what will I do over here? ies. But these are all the words that end on by do not end with ies. There is a condition कि अगर आपके पास by से पहले कौन सा है वो vowel word हो तो फिर आप by को चेंज नहीं करते. जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ toy की, इन टॉय मेरे पास यहाँ y से पहले कौन सा है vowel word है o, ठीक है. तो मैं इसको चेंज ही करूँगी, I will simply add s with it. But this is the word that before y is not a vowel word, this is a consonant word, so I will just cut down the y and I'll add ies. All those words that end on ch,
add es with it. Work will become works, cry will become cries, watch will become watches, and toy will become toys. ठीक है, तो these are the condition about how we add s, es और ies. अब हमें ये तो पता चल गया कि हमने s, es और ies अपनी verbs में जो आंसर है किस तरह से ऐड करना है. बट द क्वेश्चन दैट कम्स ओवर हेयर इज कि ये कहाँ पे ऐड करना है, कौन से सिंगुलर्स के साथ जो आंसर है हम लगाएंगे. सिंगुलर होते हैं मेरा बेटा हमारे पास कोई भी एक चीज़, किसी सिंगुलर की बात करना, किसी एक इंसान की बात करना. एवर वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग दैट इज नोन एज सिंगुलर. अब ये सिंगुलर क्या है, अली इज अ सिंगुलर और नॉट. ठीक है, अली क्या है, सिंगुलर है. अली go to school. अब अली go to school, अली स्कूल जाता है. अब बेटा मेरे ये जो go है, this is our word है हमारा. इस word में अब हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, as अली is a singular, अली एक इंसान है, एक पर्सन है, तो हम अपने verb के साथ या तो s ऐड करेंगे या es ऐड करेंगे या is करेंगे. और क्योंकि जो मेरा वर्ड है वो o पे एंड हो रहा है, तो o पे एंड होने वाले वर्ब्स के साथ हम लोग हमेशा es ऐड करते हैं. तो क्या बन जाएगा, अली goes to school. ठीक है, अब इसी का अगर मैं नेगेटिव करूं, अली स्कूल नहीं जाता है, अली not go to school. ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब मेरे पास क्या यूज होगा यहाँ पे, do या does. अब हमने सीखा कि जो हेल्पिंग वर्ब्स है हमारे पास यहाँ पे, उसमें हमेशा जो do है वो I, we, they और you के साथ आता है, और जो does है वो he, she और it के साथ आता है. अब जिस तरह हम लोगों ने अपनी क्लास में बात की कि I और you तो हमारे पास सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन I तो सिंगुलर है, तो वो फिर हमारे पास we, they, you की फैमिली के साथ क्यों यूज होता है. हम लोगों ने ये बात याद रखी थी कि हम लोग I है, I इज नॉट द फ्रेंड ऑफ he, she and it स्टेज विद द फैमिली ऑफ द प्लूरल फैमिली. वो प्लूरल फैमिली में यूज होता है, इसलिए वो हमेशा जो है प्लूरल फैमिली के साथ रहने के साथ साथ वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स में भी प्लूरल के साथ ही यूज होता है. तो I, we, they, you के साथ हमने क्या यूज किया, do, he, she, it, और कोई भी सिंगुलर के साथ हमने क्या यूज किया, does. तो हमारे पास अली इज अ सिंगुलर. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर था, अली सिंगुलर है, तो अली के साथ क्या आएगा, अली does not go to school. Whenever we'll talk about the interrogative sentences, अगर इसी तरह हम interrogative sentence की बात करें तो इन्हीं interrogative sentences में हमारे पास यही helping verb हमारे sentence के start में आ जाएगा. तो क्या बन जाएगा, यही जब helping verb sentence के start में आएगा तो क्या बनेगा, does Ali go to school. क्या अली स्कूल जाता है. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ. अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो आप में से शायद कुछ बच्चों ने एक बात नोटिस की हो, दैट यहाँ पे तो हम लोगों ने es ऐड किया था, तो फिर हमने यहाँ पे goes क्यों नहीं किया, does अली goes to school क्यों नहीं हुआ, या अली does not goes to school क्यों नहीं हुआ. Who will tell me the answer of this? Any ideas? तहरीम, फातिमा, खंसा. ये जब भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में es, ies या s जौन सा है वो उसके हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होता है. नेगेटिव और इंटेरोगेटिव रिमेन्स द सेम, उसमें हमारी वर्ब हमेशा सेम रहती है. हम उसमें s, es या ies नहीं लगाते. वी डू नॉट यूज s, es और ies इन द नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. We do not use any helping verb in the affirmative sentence of simple present tenses, so that's why we use s, es और ies with them. क्योंकि हम उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, इसलिए हम अपनी वर्ब्स के साथ एस या ई एस या आई एस लगाते हैं. लेकिन क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा होता है, तो इसलिए हम उसमें एस, ई एस और आई एस अपने वर्ब्स के साथ नहीं लगाते. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? Are you all clear with till here?
ग्रेट। अब इसी के साथ अगर हम लोग आगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंसेस की बात करें, लेट मी क्लियर वन मोर थिंग, उसके बाद आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहाँ हमने बात की थी कि एस ई एस और आई एस हम सिंगुलर के साथ बदलेंगे। अगर यहाँ अली ना होता, अगर यहाँ पे होता अली, अगर यहाँ होता हम स्कूल जाते हैं, तो फिर क्या होता? फिर हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते? What will be used over here? हम स्कूल जाते हैं, हम के लिए क्या आ जाएगा? We goes to school. No, we go to school. यहाँ पे es नहीं आएगा, it will simply we go to school. क्यों? क्योंकि ये हमारे पास we जौन सा है वो सिंगुलर नहीं है, it is not singular. अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पे हम go के साथ s, es या is लगाते। अब क्योंकि we जौन सा है वो प्लूरल है, इसलिए हम लोग इसके साथ s, es या is नहीं लगाएंगे, it will simply be Ali, we go to school। ठीक है, अब सबको क्लियर हुआ कि एस, ई एस और आई एस किस तरह से हम लोगों ने अपने सिंगुलर्स और प्लूरल्स के साथ यूज़ करना है, और किस तरह हम लोगों ने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, कौन सा हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। अब अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस की, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस में बेटा हमारे पास सेम ही है। द थिंग इज कि इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, सब कुछ सेम रहता है, लेकिन हम लोग अपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसी के अंदर चेंजेस करूंगी ताकि आपको पता चले कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, जिस तरह हमने बात की थी कि नॉर्मल रूटीन की बात करते हैं कि अली स्कूल जाता है, तो अब ये वो सेंटेंसेस है जिसमें कॉन्टीन्यूसली कोई काम हो रहा है। जिस तरह अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं कॉन्टीन्यूसली बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप कॉन्टीन्यूसली सुन रहे हैं, तो ये वो काम होता है जो कॉन्टीन्यूस होता है, यानी कि जारी होता है, हर वक्त हो रहा होता है। दीज आर द सेंटेंसेस दैट एंड्स ऑन रहा है, रही है या रहे हैं। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एज इट इज़ हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी। इसमें हमारे पास सिंगुलर के साथ इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं है कि हम उनमें कोई एस, एस या आई एस ऐड करेंगे। इसमें बस एक ही कंडीशन है, दैट इज वी विल ऐड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। इसमें हम लोगों ने एस, ई एस और आई एस ऐड किया था। इन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस वी विल ऐड प्लस आई एन जी विद आवर फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सारी फॉर्म ऑफ वर्ब होंगी उसको हम लोग आई एन जी ऐड करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब किस तरह से चेंज होंगे? हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास डू और डज से चेंज होके कौन से बन जाएंगे? ही, शी, इट के साथ बेटा हम यूज करेंगे इज। ठीक है, यहाँ से बी, दे, यू के साथ हम यूज करेंगे आर, लेकिन यहाँ से आई निकल जाएगा, आई विल बी सेपरेट ओवर हियर, और आई के साथ हम यूज करेंगे एम। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की हमने, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के साथ हमने अपना आईएनजी ऐड किया जिस तरह हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में किया था, और आर हम लोगों ने वी, दे, यू के साथ यूज़ किया, इस हम लोगों ने यूज़ किया ही, शी, इट के साथ, या कोई भी सिंगुलर के साथ, या कि जहीं कहीं पे कोई नेम आएगा। जिस तरह अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं हम स्कूल जाते हैं, तो अब ये उर्दू में सेंटेंस क्या बन जाएगा? हैदर रियाज आप मुझे बताएं, हम स्कूल जाते हैं को कॉन्टीन्यूअस में आप कैसे चेंज करेंगे? यस, वेरी वेल डन। हम स्कूल जाते हैं, सॉरी ये जाते हैं। ठीक है, हम स्कूल जाते हैं विल बी कन्वर्टेड इनटू हम स्कूल जा रहे हैं।
जा रहे। तो अब मुझे बताएं, वी गो टू स्कूल कैसे चेंज होगा? वी हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने यूज करना है व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, तो उसपे उसके अफर्मेटिव, उसके नेगेटिव और उसके इंटरोगेटिव तीनों में ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे। तो हमारे पास क्या हेल्पिंग वर्ब है जो यहाँ यूज होगा? वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? लुक ऑन द बोर्ड, देखें, बताएं। यस, वी आर go to school. Is there anything missing over here? Yes, ing is missing. We are going to school. हमने अपनी वर्ब के साथ ing ऐड कर दिया, तो हमारे पास हमारा सेंटेंस अब कंप्लीट हो गया। अब इसको भी आप लोग भी चेंज करेंगे। बताएं, अली स्कूल नहीं जाता है, कैसे चेंज होगा? अली स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, अब डज की हेल्पिंग वर्ब अली है, अली मेरे पास सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? इज। अली इज नॉट, गो के साथ क्या आ जाएगा? ing। अली इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इन सेम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव में क्या होता है? यस हसनैन, इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं? वेरी गुड, हमेशा हम अपना जो इंटरोगेटिव में हमारे पास जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको स्टार्ट में लाते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारे पास? इज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज अली, गो की जगह क्या आ जाएगा? गोइंग टू स्कूल। इज अली गोइंग टू स्कूल, क्या अली स्कूल जा रहा है? इज अली गोइंग टू स्कूल, क्या अली स्कूल जा रहा है? ठीक है, लेट मी रिपीट, आप लोगों के लिए मैं रिपीट कर देती हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में बेटा हमारे पास हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और इसमें हम हमेशा अपनी वर्ब्स के साथ ing ऐड करते हैं। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो ही, शी, इट के साथ, किसी भी सिंगुलर के साथ या किसी भी नेम के साथ हम हमेशा इज लगाते हैं, आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं, और वी, दे, यू के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं। तो कोई भी सेंटेंस जो उर्दू में हमारे पास रहा है, रही है या रहे हैं पे एंड होता है, उसके साथ जौन सा है हम हमेशा, वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, जिसको हम जौन सा है इस तरह से लिखते हैं। सॉरी, आई डिडंट चेंज ओवर हियर, दिस इज नॉट सिंपल प्रेजेंट टेंस, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस tense. This is the present continuous tense that we have talked about. So I think that you all are clear with the concept of present continuous tenses, और मैं इसके थोड़ा क्लोज भी कर देती हूँ ताकि आप लोग अगर इसको सेव करना चाहें तो इसको सेव भी कर लें, आप लोगों के पास रिकॉर्ड भी हो। एंड आई विल आल्सो शेयर दिस इन द गूगल क्लासरूम ताकि आपके पास मज़ीद इंफॉर्मेशन हो। So this is the difference between the simple present tenses and present continuous tenses. I hope that you all are clear with this concept. Please share your feedback about how you get it. आपको किस तरह समझ आया and how much you have understood it. Take good care of yourselves. Stay home. Stay safe. Allah Hafiz.